Today we have with us one of the most popular and top astrologists of the country. With his experience of 16 plus years, predictions such as demonetization, Modi 3.0, इन्होंने इतने सारे predictions किए हैं और वो सच हुए हैं. Welcome to the show today, Mr. Rohitashwa Trivedi. 99-98% एक्यूरेसी नहीं है तो वो ज्योतिष ही नहीं है. नींबू है वो चौराहे पे रख दो. अगर तुम मांगलिक हो तो पेड़ से शादी कर लो. कंसिडरिंग मांगलिक दोष होता ही नहीं है. एस्ट्रोलॉजी इज अ रैशनल लॉजिकल साइंस. डर बेच रहे हैं. वो हर महीने हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, वो हर साल हमसे कंसल्टेशन लेते हैं. अरे भाई, हॉरोस्कोप का आजकल बहुत चला है. व्हाट मेक्स अ क्रेडिबल एस्ट्रोलॉजर? यू शुड नॉट हैव टू वियर अ मास्क टू बी एन एस्ट्रोलॉजर. Does astrology also helps with mental health? उल्टी सीधी एडवाइजरी मिल रही है, उल्टे सीधे लोग राइट डिसीजन ले रहे हैं. माय जॉब इज टू बी एक्यूरेट व्हेन आई प्रेडिक्ट फॉर समवन. अरे ये तो हम तुम्हें समझा नहीं सकते जो पिछला जन्म है. Are there some predictions that you have already done for the future? And China collapses. The States of America is likely to go for war. ये astrologer 70% accuracy, इसकी strike rate 80%. Astrologer एक cricketer थोड़ी है कि आप strike rate calculate कर रहे हो. 90-95% astrologers को लगता है कि वो ज्योतिष है, वो ज्योतिष है नहीं. Today we have with us one of the most popular and top astrologists of the country. With his experience of 16 plus years as well as the experience of his family, he is one of the most credible astrologers of the country. इनके contributions और इनकी family के contribution इंडिया की हिस्ट्री में रिमार्केबल हैं. ना ही इंडिया की हिस्ट्री, आज के भारत के लिए भी इनके एस्ट्रोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी के इम्पैक्ट बहुत मायने रखते हैं. He has done several predictions and वो predictions सच हुए हैं. Predictions such as demonetization, Modi 3.0, global economic meltdown in March 2020, Kargil war, what not. इन्होंने इतने सारे predictions किए हैं और वो सच हुए हैं. And he is the assistant editor of one of the oldest Panchangs in the country, Sri Vishwa Vijay Panchang. And we have the man here with us today. Welcome to the show today, Mr. Rohitashwa Trivedi. It's very good to have you today, sir. How are you? I'm good, Simran. It is all my honor to be here. वंडरफुल सर. सर, आज का पॉडकास्ट मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ. आपके ग्रैंडफादर श्री पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी, उनकी कंट्रीब्यूशन इंडिया की हिस्ट्री में तो रिमार्केबल है ही. आप कुछ अपने बारे में और उनके बारे में ज़रूर बताइए. Simran, my grandfather was also one of my guru. Pandit Hardev Sharma Trivedi was a very simple man, man of logic, man of adhyatma, spirituality, man of mathematics. He is also the founding editor of Sri Vishwa Vijay Panchang, which is one of the oldest, not the oldest, one of the oldest Panchang of the country. He founded this Panchang in 1942 on advisory of his Guruji and his friend, whom we all know as Guruji, Guru Golwalkar ji, who suggested the name Vishwa Vijay as well. Okay. And since then, my grandfather has made many remarkable predictions, including 1962 Sino-China War, 71 War, and many more, which helped not just the masses, but also the leadership to, strategically plan accordingly. His contribution in the field of academics, in astrology, and particularly in financial astrology, market predictions, economic predictions, also has been phenomenal, remarkable. He taught astrology to many individuals who later became one of the leading names in astrology in the country. Few of them ended up founding institutions which are, the flag bearers in the field of academics in astrology. Also, then my father, Pandit Sudhakar Sharma Ji Trivedi, who was also my teacher who taught me astrology and many other domains of life. Continuing the same tradition of our forefathers, since many generations we have been astrologers, Devagya, who have been advising Raja for astrological predictions for the year so that Raja and Praja can, plan accordingly. My father, as my grandfather, again, is a very simple man, man of mathematics, man of science, who's also the editor of Sri Vishwa Panchang, Vishwa Vijay Panchang as of now. And I am assistant editor for the same Panchang. And we have the Panchangs here today. जी आपका हिंदी में पब्लिकेशन भी होता है एंड इंग्लिश में? जी हिंदी में पब्लिकेशन तो 1942 से होता आया है.
इस साल हमने इंग्लिश एडिशन भी लॉन्च किया है. दिस इज द फर्स्ट इंग्लिश एडिशन itself. It was launched in January this year only. This is to, help those readers of ours who don't have great command over Hindi, so they can also now prescribe to Panchang and astrology. That's very nice. So for our audience, पंचांग को थोड़ा आप simple language में बता सकते हैं कि what is पंचांग? क्या होता है उसका use? Simran, in the simplest terms, Panchang is a calendar like January, February, March. जी. This is a calendar, Gregorian calendar. Similarly, Hindu calendar is called a Panchang. If January, February, March Gregorian calendar is an analog suyon wali ghadi, then Panchang is a chronograph. Okay. It has multiple features. इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली जिनको हिंदी में इजी है वो हिंदी में कर सकते हैं पंचांग के थ्रू रेफर, और इवन अभी के स्टूडेंट्स ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा फोकस्ड है तो वो इंग्लिश वाली हम रेफर कर सकते हैं. दैट्स वेरी गुड. सो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है. मेनी पीपल आर प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी, बट बहुत कंफ्यूजन है कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? Let's keep it very simple, Simran. Let me give you a basic example to define what astrology is. I remember this example was given to me by my grandfather in 93, 94 sometime. I was a young child. And I'll tweak the example to make it more relevant to the current audience. Imagine, Simran, you're back home and let's say you're all alone tonight. Nobody's around with you. Your family has gone out for vacations and you're all alone. Midnight, you wake up because you are thirsty. Let's say you forgot to keep a bottle of water beside your bed. Nobody's gonna come and help you. Your desire is thirst. Your destination is kitchen. You'll have to step out of your bed, walk to kitchen to help yourself. You step out of your bed, you start walking towards kitchen. It is pitch dark, power cut, let's say. You trip over a skateboard, you injure yourself. You bang your head on a wall, again you're injured. Somehow you reach kitchen, thoda pani milta hai, thoda nahi milta. Your desire is partially fulfilled. You come back to your bedroom. You cry, crib, you blame destiny, God, society, Almighty, Narendra Modi ji, everybody about it. This is, generally how our life goes. At every instant, we are in pursuance of some desire. It can be microscopic desire as we planning our lunch out, or macroscopic desire as you planning your career move 5 years down the lane. But at every instance, we are in pursuance of some desire, fulfillment of desire. This is the story of life. Now, let's say another day or in a parallel universe, everything is same. You're as alone as you were before. You're as thirsty as you were before. Your destination kitchen is as far as it was before. Nothing has changed. But today you have a torch. You pull out that torch. You illuminate your path. You maneuver around the obstructions. You reach your destination, which is kitchen in this case. You drink water. You're satisfied. You come back to your bedroom. The experience of life is dramatically different in the second example where everything was same. Just you had a torch. The only difference was the torch. ओके. The quality which that torch adds in this example is Jyotish. The word Jyotish is formulated by संधि. वो स्कूल में हम पढ़ते थे ना, संधि विच्छेद. ज्योतिष का अगर आप संधि विच्छेद करें, ज्योत जमा ईश. ज्योत होता है लैम्प, ईश होता है मेंटोर, एक पद्धति. ज्योतिष एक वो पद्धति है जो आपको लाइफ प्लान करने में हेल्प करती है. एस्ट्रोलॉजी इज अ प्लानर. It is a planning tool which will help you plan your life better. With astrology, we can have very accurate predictions of future, which will help you to plan your life moves, your life decisions. Astrology always remain as an advisory science, which is a planner. जी, तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लानर है, वो डिसीजन नहीं है. नहीं, Am I correct? एब्सोल्युटली करेक्ट. डिसीजन तो इंडिविजुअल का होता है, कर्म तो हमें अपने आप करना पड़ता है. ज्योतिष मत वो बस वो टॉर्च है, वो लाइट है जो आपको बहुत एक्यूरेटली आपकी करंट सिचुएशन समझा देगी. ये बता देगी कि आप करंट सिचुएशन में कैसे आए, पीछे क्या आपने किया, इसकी वजह से आज ऐसा है. आज आप क्या करोगे तो उसका क्या 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 नतीजा आएगा. और ये हम बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्शंस में बता सकते हैं कि लेट्स से इफ यू टेक दिस डिसीजन टुडे देन 6 months down the lane this will happen, 2 years down the lane this happen. If you take this decision today, then 8 months down the lane this will happen, 2 months down the lane this will happen, 3 years down the lane this will happen. Whatever suits you, you take that path. Astrology always remains an advisor only. Correct. That gives a lot of clarity because अभी तक मेरे माइंड में तो ये था कि एस्ट्रोलॉजी होती है कि बता दिया कि क्या होगा एंड दैट इज एस्ट्रोलॉजी. मेरे को तो ऐसा लगता था. So Simran, I would, if you allow me, I'll want to elaborate here. Yes.
You touched upon a beautiful, not beautiful, but a very interesting topic here कि ये होगा. Are you hinting towards destiny? We all use this word destiny very often in our lives, right? हम सब destiny का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में. अरे ऑफिस लेट हो गया, ट्रैफिक मिला था आज तो किस्मत ही खराब है. Invariably, we will use destiny. Now let's dig into the word destiny or the concept destiny. The concept of destiny says that some results or all the results are fixated. Future is predetermined or fixated. This means, or we can also say rather, if future is predetermined, then there is no impact of previous sequence of events onto future. No matter howsoever we perform or no matter what we do, will have no impact because future is predetermined and fixed. Previous sequence of events will not impact future. Now, forget about all the books, all the theories and religion which we have been studying. Think rationally, human empirical observation. Do you observe this phenomena in day-to-day life? For example, let's say if I jump off from a balcony, I'll break my bones. Obviously. Which means me breaking my bones is dependent upon me jumping off from the balcony. If I do not jump off from balcony, I will not break my bones. Human observation will tell us that the end result has direct relation from the previous sequence of events. Let me phrase it like this. Previous sequence of events formulate the outcome or future. Let me again rephrase it. हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलता है. Ring a bell? This is the कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत. हम जो कर्म करेंगे उसके अनुसार फल मिलेगा. और the future is always dynamic. It is very dynamic set. Howsoever we perform today determines the future. There is no concept of destiny in Vedic sciences. We do not believe in destiny. There is not even a equivalent paryayavachi shabd for destiny in Indian languages. Kismat, Takdeer, Muqaddar are all non-Indian languages. And we are karmavadi. We believe in the karma principle, where we say we believe that whatever we do today will determine the outcome, and whichever situation we are in today is because how we performed earlier. That gives a lot of, perspective to think about कि actually में क्या होता है. और destiny भी actually में हम लोग जो सोचते थे कि बहुत चीज़ें उसके हिसाब से होती हैं. और astrology was actually destiny, मेरे को तो लगता था एक तरह से कि उन्होंने जो बता दिया वो fixated है. But this gives something to think about for sure. Absolutely right here, Simran. This confusion, as consultant astrologers, we face this confusion a lot. People, at times come to us so with expectation कि हम prophecies बताएंगे उन्हें, हम उन्हें destiny बताएंगे, हम उनको किस्मत के बारे में बात करेंगे, but we only talk about karma. And astrology is that mathematical tool with which we can very accurately predict the future state of the system, whichever choice you are, as per whichever choice you have made today or whichever choices you have made in past. Okay. This helps the individual in planning जी. to attain a desirable future. For example, सिमरन अगर ये चाहें कि मैं 5 साल बाद अपने करियर में इस जगह पर पहुंचूं, यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पहले हम ज्योतिष में चेक करेंगे फिजिबिलिटी कितनी है. क्या आप यहाँ पहुंच सकती हैं? इफ यस पहुंच सकती हैं तो आपको अगले 3 साल में क्या क्या करियर मूव कब कब करनी है, सो दैट आप उस लेवल पे पहुंच जाएं. एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ पैनल जो आपको एक्यूरेटली ये बताता है. ओके. सो एक होती है एस्ट्रोलॉजी और एक होती है ट्रू एस्ट्रोलॉजी, जो अभी रोहित सर ने हमारे को बताई. तो सर एक चीज़ और है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं कि बहुत जगह अप्लाई होती है एस्ट्रोलॉजी. वो आप बताएंगे ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ? So, Simran, let's go into the history of astrology first to understand branches because they will come out in the evolution of the story itself. See, our ancient forefathers, our ancient rishis, because they were blessed by Mother Nature, food reserves थे हमारे पास, अच्छी demography, safe environment, 6 seasons. They had the luxury of recreational time, because of which thinking, philosophy emerged in ancient Bharat. Our ancient rishis realized that certain forces, certain systems rather, let's say human nature, human behavior, society's behavior, weather, plate tectonics, earthquakes are absolutely chaotic. They are random. They don't follow any mathematical sequence. Whereas there are certain systems
let's say motion of a projectile, movement of stars. जी. They follow rigid mathematical system. Their future state can be very accurately determined by defined mathematics and physics. But certain systems, which let's say we can call them chaotic systems, do not follow any regular mathematical order, because of which future state cannot be determined. Our ancient rishis devised a mathematical theory, जी. which we call Jyotish, to induce determinism in a chaotic system. जी. Human life, human behavior, weather forecast, society, everything is a chaotic system. With astrology, we can determine absolute determinism in such systems. Now, application of the same. जी. When we apply astrology, Jyotish, to predict about an individual can be you, me, anybody. Let's say about my career, your health, about an individual, then we call it Jatak Jyotish, native astrology. Okay. When we apply a theory of astrology to predict for masses, society, political party, जी. country, it is called Medini Jyotish or Medini. 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 Medini is Mother Earth, जिसको गाया भी बोलते हैं, जी. Mother Earth. हाँ. Then mundane astrology. Then we have financial astrology where economic trends, stock markets are predicted. Then we have medical astrology as well. We have various branches. Got it. So basically आप ये बोल रहे हो कि for example earthquakes and things that are unpredictable, जो कि scientists भी predict नहीं कर सकते हैं, that is possible through astrology. These systems are unpredictable because we think they are unpredictable. जैसे 200 साल पहले before Wright brothers, जी. उड़ना भी fantasy लगता था, पर अब हम उड़ते हैं. As of now, modern sciences को लगता है ये predictable नहीं है, but they are predictable. Okay, that's very interesting. And astrology को माना जाता है कि it's a pseudoscience. Pseudosciences की इसका कोई scientific proof नहीं है. It is a belief. तो उसके बारे में आप क्या कहें? क्या astrology pseudoscience है? Simran, my opinion, जी. astrology is a pure mathematical science. Okay. It's just that, state of our society. फॉर एग्जाम्पल अभी से 400-500 साल हम पहले जाएंगे तो मडीवियल एजेस में तो विचक्राफ्ट भी हो रहा था यूरोप में, जो भी एक एडवांस सोसाइटी है. अभी भी बहुत लोग हैं जो फ्लैट अर्थ थ्योरी जो कहते हैं अर्थ गोल ही नहीं है, राइट. सो धीरे धीरे हमें पता चला कि नहीं, फ्लैट नहीं है, हम तो गोल है वेस्टर्नर्स को. सिमिलरली धीरे धीरे अभी अभी 20-25-30-40 साल पहले आयुर्वेद का भी बड़ा क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता था, अब इसको एक साइंस मानने लगे हैं. Similarly, ज्योतिष के अगेंस्ट भी एक बायस ही है. It is purely a field of science. Why? I'll tell you why. See, a theory is scientific if it has uniform applicability जी. and if it is consistent with test of time. It Right. should be true today, it should be true tomorrow, it should be true day after as well, over repetition of cycles. जी. In astrology, the same theory will give super accurate predictions for one individual, for 10 individuals, and for 100 individuals, irrespective of their caste, creed, era, or even gender. The same theory will give super accurate predictions for societies as well. Whether you apply this theory in 14th century or 21st century or in 23rd century in future. The same theory gives accurate results of the future state of system. It has uniform applicability and it is consistent with the repetitions of time. जी. It qualifies to be science. That's interesting. Because बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि यार ये तो अंधविश्वास है. It is a belief system. इसका कोई प्रूफ नहीं है. बट अब आप जैसे बता रहे हैं, जैसा आपने इसको सीक्वेंस किया, it actually makes sense. So also, I think एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, उसको हम पर्सनल लाइफ में तो सर यूज कर सकते हैं, लेकिन एट अ लार्जर स्केल पब्लिक लाइफ में भी क्या एस्ट्रोलॉजी यूज होती है? जी, मेदिनी ज्योतिष, modern astrology, ये बात. particularly Panchangkarita. Panchangkarita, Kalmanath making, Panchang making is one of the oldest surviving service sector. ये अगर हम अपने इतिहास में जाएं तो त्रेता युग से पंचांग बनते आए हैं. अगर हम मॉडर्न साइंसेज में भी देखें तो इवन एंशिएंट सिविलाइजेशंस, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जिसे मानते हैं, वहाँ से एल्मनाक मेकिंग, कैलेंडर मेकिंग होती आई है. इंडियन हिस्ट्री में कैलेंडर मेकिंग में एस्ट्रोलॉजर देवाज्ञ जी. अगले एक साल की प्रिडिक्शंस एनवायरनमेंट की, एग्रीकल्चर, क्लाइमेटिक, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल करते आए हैं. और वो राजा जो कि उस टाइम में राजा महाराजा होते थे, अभी सॉवरन है वो, तो गवर्नमेंट लेट्स से राजा को पब्लिश करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगले एक साल में ज्योतिषीय रूप से this will happen, this will happen, this will happen, this will be the state of economics, this will be the state of agriculture, this will be the state of law and order, this will be geopolitics around you, this will be the politics around you. You plan.
in larger interest of nation. Similar predictions are made for masses. Economy appears to be headed this way, inflation appears to be headed this way, climatic conditions are this, societal harmony appears to be like this, plan your life accordingly. It remains a planner routine. Remains a planner. सर आपने मेंशन किया जियो पॉलिटिक्स एंड प्रिडिक्शंस के बारे में, आपने काफ़ी सारे प्रिडिक्शंस किए हैं, डिमोनेटाइजेशन हो गया, देन मोदी 3.0 हो गया, देन रशिया यूक्रेन वॉर भी आपने किया है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो हुआ था मार्च 2020 में वो भी आपने प्रिडिक्ट किए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने प्रिडिक्ट की हैं और वो सही भी हुई हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का जियो पॉलिटिक्स में क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? सी एस्ट्रोलॉजी का जियोपॉलिटिक्स में अगर हमें महत्व देखना है तो हमें थोड़ा सा अपना बायस, आर इंडिविजुअल बायस टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी हटाना पड़ेगा, गूगल रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड यू विल सी एस्ट्रोलॉजर्स across the history, across the civilizations जी who have been advising the dispensations and rulers. हाँ। इसमें कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, कहानियां मिल जाएगी, where astrologers, certain astrologers played critical role in advising the US presidencies, British presidency. फिर आपने रासपुतिन का एक नाम सुना होगा, जी। वो इन्फ्लुएंस जियो पॉलिटिक्स। काफ़ी ज्योतिषी रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, जिन्होंने भारत के भी राजाओं को, नेताओं को समय समय पर अपनी एडवाइजरी दी। दादाजी अपनी तरफ से जो उनको हो पाता था वो एडवाइजरी 60s, 70s, 40s, 50s के डेकेड में देते आए हैं। जी, तो उन्होंने आपके जो दादाजी हैं श्री पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी, उनका इंडिया के इंडिपेंडेंस में भी कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसके बारे में भी एक मेंशन करता है। पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी was an eminent astrologer of that time, young eminent astrologer of that time, was also associated with the freedom movement, and he had a very friendly, platonic, academic friendly relationship with Dr. Rajendra Prasad and and Pandit Jawaharlal Nehru ji. Dr. Rajendra Prasad was a brilliant man, man of science, man of astrology, man of religion. He knew that the time of Indian independence, when the documents will be signed, जी the kundli, the lagna kundli of that instant will have a significant impact on our future decades to come. He consulted Dadaji for the same, where 15th of August wasn't appearing as a very auspicious day. या So best was to postpone it by a day or two, but then due to logistics and colonial reasons, postponing by a day was just not possible. So Pandit Hardev Sharma Trivedi ji, Dr. Rajendra Prasad जी ji, and Pandit Vyas ji of Ujjain, they sat together, brainstorm, and then midnight, on my Dadaji's opinion, was decided as the time. At Really? So instance- midnight. Ji, because a small window of around 1.5 to 2 hours was identified, which will have very strategic and significant impact on future of India, Bharat. दैट्स अमेजिंग। आई थिंक ये एजुकेशन बुक्स में जाना चाहिए हमारी हिस्ट्री की फॉर श्योर, क्योंकि दिस इज अ सिग्निफिकेंट थिंग फॉर एस्ट्रोलॉजी एज वेल एंड फॉर अस एज स्टूडेंट्स आल्सो। दिस इज अ रेलेवेंट थिंग आई गेस। Pseudo science बोलते हैं पर अभी बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन जो जनरली आते हैं, वो ये होता है कि एस्ट्रोलॉजर जो होता है, बहुत सारे अवेलेबल हैं। मुझे कैसे पता कि या किसी को कैसे पता कि कोई एस्ट्रोलॉजर उनके लिए अच्छा है या सही है? ये कैसे पता लगता है? देखिए सिमरन, एस्ट्रोलॉजी इज अ सर्विस सेक्टर। एज एन एस्ट्रोलॉजर आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एडवोकेट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, हम अ सर्विस प्रोवाइडर। पहले तो बॉलीवुडाइजेशन, सिनेमाइजेशन, राइट, हमने एक स्टीरियोटाइप बना दिया हर का कि एस्ट्रोलॉजर हैं तो इतनी बड़ी दाढ़ी होगी, बुड्ढे से होंगे, धोती पहन के कहीं बैठे होंगे। एस्ट्रोलॉजर इज अ प्रोफेशनल। लाइक माई ग्रैंडफादर वाज एन एस्ट्रोलॉजर, ही वाज अ गृहस्था व्यक्तित्व, गृहस्थ व्यक्ति who had a family man, he had a business as well. He lived his life as a professional. Same goes for my father, same goes for me, same goes for many other astrologers. But then all other service sectors which have significant impact on society have some compliance system, some compliance body. Like for example, in medicine, we have medical councils. In advocacy, I think we have bar councils जी to manage and control discipline and compliances on the service sector. Unfortunately for astrology, we do not have any compliance body, because of which there is no control. Anybody and everybody can call themselves an astrologer. YouTube पे कोर्स करो, ज्योतिष पे जाओ, कुछ भी बोलते रहो. Because of this, significant amount, as you rightly pointed out earlier as well, significant amount of superstition and adulteration occurred in this field. मेरा अपना एक ये बहुत humble opinion है कि भारत के maximum astrologers
मानते हैं कि वो ज्योतिष है, दे आर नॉट इवन एस्ट्रोलॉजर्स। वो मानते हैं बस 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते का क्रैश कोर्स चल कर, कोई थ्योरी पता नहीं है, बेसिक्स पता नहीं है, तुक्के मारे जा रहे हैं बिल्कुल। और मार्केट इतना बड़ा है, फियर साइकोसिस सबकी दुकान चल रही है। एस्ट्रोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ साइंस। कम से कम 4-5 साल की पढ़ाई लगती है, 5-6 साल की प्रैक्टिस लगती है, देन you become a, let's say, a credible astrologer. Now the problem is how to identify who's credible, who's not credible, to take life advisories from. Simple rules, stick to basics. Astrologer would just need your birth details, no information about you, not even your name, not even your questions, not even your situation, not even your profile. You just need to provide your birth details, dates, time and place of birth to astrologer. Birth time should be approximately accurate. 10-15 minutes of error is also fine. With just your birth details, astrologer should be able to make very accurate and precise predictions about your past. Ki, hey Simran, it appears that in 2015 July this and this happened with you. Then March 2018, I think you took an relocation. In August 2019, this and this happened. At 2022 June, this happened with you, and you are here in 2025, 2 months ago. This and this should have happened in your profession, and right now you must be thinking about this and this. If an astrologer can very accurately map out previous events of your life without any prior information about you, then he knows astrology. Otherwise, he has no knowledge of astrology. If an astrologer can do this, then only take him seriously, and then only take his predictions and advices. सो बेसिकली हमारे को वो बता पाए कि पहले क्या हुआ है, ताकि वो हमारे को एटलीस्ट ट्रस्ट करा पाए अपनी बातों पे कि यस, दिस इज द प्रूफ दैट दीज थिंग्स हैव हैपेंड। इफ दे अलाइन विद इट, then this guy or this girl, this lady, is a true astrologer. Absolutely. Astrologer should be able to very accurately map at least 4-5 previous experiences or incidents of your life very accurately. No subjectivity, very objectively. Ki this time this and this happened, this time this and this happened. If astrologer can do that, that means he has understood your chart and he has mapped out the patterns correctly. If astrologer can't do this, then no point. ये तो बात हो गई बर्थ डिटेल्स की। सर एक बात बताइए, बर्थ डिटेल्स जो होती हैं क्या सिर्फ वही मैटर करती हैं? किसी की अपब्रिंगिंग कैसे है, वो कैसे रेज किया गया है, क्या ये मैटर नहीं करता एस्ट्रोलॉजी में? Very interesting question, Simran. I would want to elaborate onto it. See, as we previously discussed, astrologer should be able to very accurately map out events of your life just by your birth details, जी। right? Let's add another discussion into this question. एक बहुत common debate देखा जाता है TV channels पे, where a side representing science and a side representing astrologers will come and they will debate कि एक ही hospital में अगर 5 बच्चे पैदा हुए हों तो सब एक ही टाइम पर, which is very possible. let's say एम्स बड़ा हॉस्पिटल है, एक मिनट के अंदर 5 बच्चे पैदा हुए हैं, so technically they will have absolutely same horoscope. तो अब उनकी कुंडली का क्या होगा? And I'm yet to see one astrologer making a logical argument there. पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, your horoscope might be, if two individuals are born in the same hospital, same ward, let's say 10-10 मीटर दूर का वार्ड है, सेम इंस्टेंट पे पैदा हुए हैं, आपकी कुंडली बिल्कुल एक जैसी होगी, बट योर पेरेंट्स आर डिफरेंट. योर 4th हाउस एंड योर 10th हाउस इज डिफरेंट, योर 8th हाउस इज डिफरेंट, which translates as this only your question, जी। your upbringing, first few years of your life. All these kids who are born at the same time will go through same gochar, they'll have same Lagna Kundli, same Navmansh Kundli, same dashas throughout their lifetime. But first few years of life, I'll not get into the academic details कि कितने साल देखा जाता है, वो particularly एक कुंडली से mathematical argument आएगा कि इस कुंडली में इतने साल का देखना है, 8 से 12 साल का आता है. It is actually बाल्यकाल, जब तक puberty नहीं शुरू होती बॉडी में. 8 से 12 years के बीच में our cycle of biological process of puberty begins. Age prior to that, balyakal. When we are born, the instant at which we are born, where maternal instincts of our mother rises the moment the mother sees the child, mother identifies the child, जिसको postpartum भी कहते हैं, seat of maternal instincts. Similarly, the child also identifies mother. वहां से बच्चे की कुंडली शुरू होती है. Now for next some time, toddler age, till the time child is dependent upon the mother for the nutrition, तब तक that child is only and only mother's horoscope.
बच्चे की कुंडली अभी एक्टिव ही नहीं हुई है। जैसा वो कहा जाता है ना, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। बच्चा माँ के मन को कॉपी करेगा, पूरी तरह से माँ के मन को कॉपी करेगा। धीरे धीरे फिर वो अपने फादर को, अपनी फैमिली मेंबर्स के मन को कॉपी करने लगेगा। आपने देखा होगा, यंग किड्स टेंड टू follow and copy their elders. बिल्कुल। Then slowly, 2-3 years down the lane, child will start plugging into his horoscope and unplugging from the mother and the father's horoscope. Then between 8 to 12 years, precisely we calculate in every horoscope कि there it should have happened, where child will completely unplug from mother and father and become his or her own horoscope. जी। हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं एक ही इंस्टेंट पे, एक ही साथ, उन सब की कुंडली बिल्कुल एक जैसी होगी, बट येट दे विल हैव डिफरेंट लाइफ and different narration, and every child's narration and life can still be very accurately predicted by using same principles of astrology. पर astrology आनी चाहिए, ज्योतिष बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, वही नहीं आते लोगों को आजकल. Now let's say if twins are born same time, same place, and even the family is same, you will see a resonance in their life. Until a particular age, everything will go absolutely same. Then from a particular instance, small variation will happen, small variable will change, and then their lives will take a different path. If twins are of opposite gender, जी। then the gender differences will formulate their personality differently. Let's say if the twins are identical and conjoined, जी। their life will actually take absolutely same trajectory. ओह! दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। पढ़ते ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं करते हैं, सूडो साइंस कहकर बैठे हैं, तो कैसे होगा काम? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। आई थिंक इसके बारे में नॉलेज और जो अभी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, पीपल डू नॉट एक्टिवली टेक दैट मच इंटरेस्ट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एब्सोल्युटली, पीपल टेक एस्ट्रोलॉजी एज अ रिक्रिएशनल, जैसे वो होता है ना, कुकिंग सीख लेते हैं, पास्ता बनाना, बेकिंग सीख लेते हैं. Astrology is not like that. It is field of science. Please, you need at least 4-5 years of dedicated studies to understand astrology. उस तरह से कोई सीखे तो आ जाएगी, सरल विद्या है, इतने हज़ारों सालों से चली आ रही है. See, Simran, there are certain things which are unique about astrology. It is one of the oldest surviving service sector. आज से 10,000 साल पहले भी it was a service sector. There were astrologers. 2,000 साल पहले भी we had astrologers. 500 years ago also we had astrologers, practicing professionally. And today also we have astrologers practicing professionally. जी। Another unique feature of astrology, it is common to every civilization. Almost every civilization has their own school of astrology. Right. Another interesting thing about astrology, it excites every religion, every culture. You'll see people inclined towards astrology from all spectrums of life, from all civilizations, religions, and societies. एंड प्रोफेशन आल्सो। And profession as well, absolutely. बहुत सारे लोग, नो मैटर हू दे आर, बिजनेस ओनर्स है, पॉलिटिशियंस है, हम इंडिविजुअल्स हैं, मीडिया पर्सन्स एज वेल, नो मैटर एनी प्रोफेशन दे स्टिल डू फॉलो एस्ट्रोलॉजी, यस, ट्रू एस्ट्रोलॉजी, दैट्स व्हाट दे शुड फॉलो, राइट? अच्छा सर, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ कि आपने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई हैं। आपने भी पहनी है? हाँ, वो तो मेरी अलग रिंग्स हैं। आप में जेमस्टोन्स आई थिंक है, इसमें जेमस्टोन। जी, जी, जी. सर इसके बारे में क्या, ये आपने क्यों पहनी है? Astrological reasons. ओके। Gemstone is one of the most used and effective remedial therapy corrective tool in astrology. When you wear a gemstone, it is as good as local application of a particular mineral onto your body. Or for example, I'm wearing blue sapphire. Blue sapphire is nothing but aluminium dioxide, Al2O3. When I wear blue sapphire as a ring, it is as good as local application of Al2O3 onto my body. जैसे कभी चोट लगती है, we apply a ointment, we apply a muscle, ointment or a pain relief, वगैरह कुछ, और हमारा दर्द ठीक हो जाता है, because that ointment is nothing but a chemical salt, which is when applied to the locally applied to the body part, it triggers some biochemistry, something, and the relief occurs. Similarly, when we wear a gemstone as a ring or as a pendant, gemstone has a particular chemistry. It inculcates a chain reaction. It inculcates minor changes in biochemistry, which has a butterfly effect. A will lead to B, B will lead to C, C will lead to D. And some things, and many things about you, your personality, your body would change. Desirable change can very easily be mapped and then inculcated by gemstone therapy. ओके। मैंने आपसे इसलिए पूछा, एक तो मैंने आपकी रिंग्स नोटिस करी, प्लस एक्चुअली मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था कि अ फ्यू इयर्स बैक
मेरे को किसी ने बोला था, किसी आप समझ ही सकते हो, आज हमारा डाउट क्लियर हो रहा है कि ट्रू एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं, तो मैं उसे किसी ही बोलूँगी। तो किसी ने बोला था मुझे कि आप स्किन टचिंग डायमंड पहन लीजिए, तो मैंने पहन लिया। तो मम्मा ने भी बोला पहन लो, मैंने पहन लिया। सो बेसिकली स्किन टचिंग डायमंड इज़ कि आपके रिंग के नीचे वो एक्सपोज़्ड रहता है, उसका बॉटम पार्ट डायमंड का, और वो स्किन को टच करता है। द मोमेंट आई स्टार्टेड वेयरिंग इट, आई वाज़ कंप्लीटली फाइन बिफोर इट। जब मैंने पहनना शुरू किया, विदिन 3 टू 4 डेज़ का टाइम और सर्टेन ड्यूरेशन एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, आई फेल्ट सो इल, आई वाज़ हॉस्पिटलाइज्ड एंड लिटरली इट वाज़ लाइक ये क्या हुआ मेरी लाइफ में अचानक से। आई टुक दैट रिंग ऑफ, वो रिंग आज तक मेरे लॉकर में पड़ी है। So two things, Simran. This is a telltale narration कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डायमंड है वो। पहनना नहीं है आपको। See, gemstones, including diamond, जी। are very potent, and diamond is one of the most potent gemstones. अच्छा। Gemstones should only be worn with very only when you have been advised to wear the same by some seasoned astrologer. डायमंड की तो अलग ही कहानी है, रिंग सेरेमनी वो कुछ बॉलीवुड वगैरह में होता रहता है, सिनेमा वगैरह में हम 7-8 हैं, शादी को लार्जर देन लाइफ पिक्चर की तरह दिखाओ, पूरी पिक्चरें बना दी शादी सेरेमनी के ऊपर। अरे रिंग सेरेमनी करे बिना तो शादी पूरी नहीं होगी। और वो किसी ने बोला हीरा तो सदा के लिए होता है, किसी ने कहा फॉरएवर होता है, तो सब लोगों ने पहनना शुरू कर लिया। जी। अब हम अपनी जो इंडिविजुअल कुछ रिसर्च करते रहते हैं, आई हैव सीन सिग्निफिकेंट स्पाइक इन केसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, hormonal health, skin related issues, and diabetes, pancreatic health in cases who have been wearing diamond for long time. डायमंड हम एंड अगर हम ग्रंथों को देखें, क्लासिकल लिटरेचर को देखें, डायमंड इज फॉर प्लैनेट वीनस विच इज रिप्रेजेंटेटिव और कंट्रोलर ऑफ दीज फैकल्टीज ऑफ आवर हेल्थ. एवरीबडी इज वेयरिंग डायमंड, एवरीबडी इज फॉलिंग सिक. इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली जो ये डायमंड वाला पूरा इंसिडेंट था ना, उसने मेरे को बहुत शेक कर दिया कि उसके बाद से ही मैंने कोई भी आज तक डायमंड अपनी स्किन को टच भी नहीं किया। ऑल दीज रिंग्स इफ यू सी दे आर वेरी ऊपर की तरह। जी। दैट्स व्हाई दिस वाज द रीजन। राइट. अच्छा, मेरे दिमाग में ये जैसे अब बात आई हमारी, एक तो हो गया जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक होता है अंधविश्वास, जैसे कि अ, नींबू है वो चौराहे पे रख दो, देन अगर तुम मांगलिक हो तो पेड़ से शादी कर लो, व्हाट नॉट, लाइक इस टाइप के जो अंधविश्वास होते हैं, उसके बारे में एस्ट्रोलॉजी का और आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सारे सुपरस्टिशन जड़ दिए हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बहुत सारा अंदर उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी थ्योरी, उल्टी सीधी नरेशन जड़ दी है। इफ वी स्टिक टू द क्लासिकल लिटरेचर, वैदिक ऋषि, वहाँ कहीं किसी सुपरस्टिशन की बात नहीं आती। फॉर इंस्टेंस मांगलिक दोष कुछ होता ही नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड मांगलिक दोष। इसे बिना वजह कुछ पिछले दशकों में भारतीय ज्योतिष में गढ़ दिया फियर साइकोसिस से, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं होती है। इसकी वजह से मैंने इतने शादियाँ टूटते जुड़ते हुए देखी हैं, वेयर इट कैन बी कंप्लीटली अवॉइडेड। देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरिंग मांगलिक दोष, होता ही नहीं है। ऐसे ये काल सर्प दोष, क्योंकि नाम डरावना लगता है, किसी ने ये घुसा दिया है, बिल्कुल ये अंधविश्वास है। एस्ट्रोलॉजी इज अ रैशनल लॉजिकल साइंस। आपकी जो रेमेडीज होती हैं वो एक्शनेबल, लॉजिकल, डिसीजन मेकिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के ऊपर होती हैं। कि फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, आई डू नॉट नो योर ओनली एग्जांपल ओनली, कि लेट्स से सिमरन आपको 6 महीने के अंदर जॉब चेंज करना है, 4 महीने के बाद एक जॉब ऑफर आएगा, दिस इज ऑस्पिशियस, प्लीज अवेल इट। सिमरन आपको अपनी बेटर हेल्थ के लिए ये सच एज लेट्स से इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज वर्किंग आउट एवरी मॉर्निंग, ये चेंज लाना है आपको अपने जीवन में। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करती हैं या किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाती हैं, तो ये मंगल की रेमेडी, मार्स की रेमेडी होती है। खेल कूद प्रतियोगिताएं में हिस्सा लेना, रेजिमेंटल लाइफ बनाना इज अ मार्स, मंगल की रेमेडी। इसमें कोई सुपरस्टिशन नहीं है कि लेट्स से आंखों को कोई कहता है कि आप वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स में जाएं, तो वो तो बहुत लॉजिकल एडवाइजरी है। एस्ट्रोलॉजी में हम पिन पॉइंट करके बता सकते हैं कि दिस लॉजिकल रैशनल गुड लाइफस्टाइल चेंज इफ यू डू, your life will change. A will lead to B will lead to C will lead to D. A and D are not related to each other, but A will trigger D. The butterfly effect, commonly called the butterfly effect. हम जो रेमेडीज बताते हैं वो बटरफ्लाई इफेक्ट का एक पिट स्टॉप उठाते हैं कि ओके दिस इज इजी टू बी डन, आप ये करें एंड अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट विल स्टार्ट, एंड दिस इज हाईली मैथमेटिकल, हाईली लॉजिकल. इंटरेस्टिंग। इससे मेरे को ये समझ में आई कि आजकल जो एस्ट्रोलॉजी होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर
वो डर बेच रहे हैं. Is Yes, that that correct? process. And I would want to add, Simran, not just astrology. This is a story with every service sector. हम कितनी कहानियां सुनते हैं कि medicine, advocacy, डरा दिया जी ये कराओ वो कराओ. This is story corruption in the system. Is story of every service profession, not just astrology. Astrology is also one of those service sectors which have been impacted by such commercialization and corruption. It's just that there is no compliance body फॉर एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज. दस यहाँ पे करप्शन बहुत फैल गई. आप मेडिकल काउंसिल्स बार काउंसिल हटा दो और फिर देखो क्या होता है वहां पर भी हो जाएगा. कोई काउंसिल नहीं है एस्ट्रोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए. Does that create a lot of problems? Absolutely, this is the problem. But nobody, you, I, we can't do anything about it. Hopefully, exchequer, sovereign government will step in and put some organization. There should be one. There should be one. Vishwa Vijay Panchang has been advocating the need of same since decades. So this is the need of the hour, जो कि गवर्नमेंट को इस पे फोकस जरूर करना चाहिए, because lot of lives are impacted, not only personal but public life as well does get impacted. People take life decisions by astrology. वो सूडो साइंस है या नहीं है ये बात का डिबेट है. दिस इज अनदर डिबेट. बट पीपल आर टेकिंग लाइफ डिसीजंस बाय subscribing astrology, which means astrology has significant impact on life of individuals. We can't stop that. People will continue to have their belief system in astrology for religious and spiritual reasons as well, which means this institution needs structuring because it is impacting individual lives, family lives. हम सब ने civics में पढ़ा है ना, family is the smallest unit of society. If families are being impacted, society can't stay inert. Impact तो trickle up होगा, society पे भी जाएगा. अगर आप मान लीजिए कि एक खुले होता ना कि फ्लड गेट्स खुले हुए हैं उल्टी सीधी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजरी और डिसीजन मेकिंग की, तो इंडिविजुअल्स उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे हैं, फैमिलीज इम्पैक्ट हो रही है, इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, फैमिली मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है. वही हमें सोसाइटी में जो रेज एंगर दिखता है वो इसी का आउटकम है. ओके, जैसे हमारी बात हुई लाइफ डिसीजंस के बारे में, तो क्या एस्ट्रोलॉजी को सेवियर या एस्केप की तरह यूज करना चाहिए एक इंडिविजुअल को, या कब उसको यूज करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी को, हर जगह पे यूज करना चाहिए अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी? देखिए, इट इज नीदर द savior nor the escape mechanism. It is the planner. Like in management we say na, right product at the right time at the right place. Astrology is the tool to take right decision at the right time in the right direction with the right strategy. It remains a planner. Then I believe that astrology should only be used for macroscopic decisions of life, such as, job change, business investment, significant personal life decisions like committing your life for matrimony to someone, moving from a city to a different city. All major decisions of life should be taken with astrological consideration. For minor day-to-day life, astrology is not meant for micromanagement. Evolution, प्रकृति ने हमें हजारों साल की एवोल्यूशन में डिस्क्रिशन, लॉजिक, इंटेलिजेंस दी है. डे टू डे लाइफ के लिए आप अपनी मत ही अपनी रैशनैलिटी, इंटेलिजेंस को यूज करें. एस्ट्रोलॉजी इज ओनली फॉर दोज क्रॉस रोड पार्ट्स, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ. फॉर एन इंडिविजुअल, 5 to 6 good consultations in entire lifespan from early childhood to very old age are much more than sufficient. You don't need to go to an astrologer every month, every day, every year. 5-6 consultations throughout the lifetime sufficient. इसमें कई एस्ट्रोलॉजर्स को सुनने में आता है आजकल, मीडिया है, व्यूज बढ़ाने हैं वगैरह वगैरह. अरे हम तो उनको फलानों को 10 साल से कंसल्ट करते आए हैं, वो हर महीने हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, वो हर साल हमसे कंसल्टेशन लेते हैं. अरे भाई, इफ a person needs to consult an astrologer over and over again, it is a question mark on the ability of astrologers. That means you are not able to sort out their life. A good astrologer would only need to consult you 4-5 times and your entire life is sorted. ये चीज़ आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट करी है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता किसी ने पहले ये चीज़ बोली है कि आपको एज एन एस्ट्रोलॉजर 4 से 5 एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक अगर आप एस्ट्रोलॉजर तक जाते हो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम आई एस्ट्रोलॉजर के पास भाग जाओ, उस तरह से. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, इज इट एन एस्केप एज वेल? If you are in your late 20s, you'll only need astrological consultation 3-4 times in your entire remaining lifetime until your very old age. जी. तो मॉर्निंग में जैसे हॉरोस्कोप का आजकल बहुत चला है कि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस आते हैं, वो हमारे को सुबह सुबह भेजते हैं हॉरोस्कोप और हम लोग रीड करके अपना दिन स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैंने तो कभी भी नहीं किया, मैंने तो पढ़ी नहीं आज तक. हमारे इनफैक्ट परिवार में भी डेली
किसी ने नहीं पढ़ी, लोग करते हैं, दुकानें हैं, चलने दो। सो वो एवं ही है बेसिकली, चल रहे हैं लोग, करना है तो करने दो, वो दो चीज जब तक उन्हें लग रहा है कि वो चल रही है, उनके लिए बेनिफिशियल है, आई थिंक वो तब तक वो चीज करेंगे। बाय द टाइम एक दिन प्रिडिक्शन वो ठीक नहीं गई ना, वो छोड़ देंगे। आई एम श्योर, आई नो बिकॉज आई डिड दिस। I agree with you, yeah. या अगर हम सोचते हैं इंडिया में एस्ट्रोलॉजी की और उसकी स्टडी की, तो अकॉर्डिंग टू यू कैसे स्टडी होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, और व्हाट मेक्स अ क्रेडिबल एस्ट्रोलॉजर इस कंट्री में आज? जी। देखिए, astrology is again like science. It is an elaborate study. There are many institutions, universities, colleges who offer courses on astrology. You can do bachelor's in astrology in India. You can also do master's in astrology. अभी जैसे IIT वगैरह का होता है कि only those who have scored bare minimum these many marks and studied these subjects in high school can get admission in engineering colleges. Similarly, astrology के लिए भी a person needs to have very good understanding of mathematics. Person should have studied mathematics, then only person will be able to study astrology. फिर 4-5 साल कम से कम लगते हैं to study astrology, to understand astrology. Then they say no कि your practice makes you better. Then when after 4-5 years of studies, astrologer will start practicing. 5-6 years of apprentice or trainee astrologer. Then from 8th or 9th year, the person should start practicing astrology. I started learning astrology in 1999. From 1999 until 2008, 2009, I studied astrology, interned under my father and few other astrologers to learn astrology. And then from 2010-11, I started practicing astrology as an individual myself. तो बेसिकली नॉलेज बहुत मैटर करती है, एंड नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन जैसे बाकी सब प्रोफेशन में भी होता है, इसमें भी वैलिड। एब्सोल्युटली। जैसे आपने बोला था क्रैश कोर्स, एस्ट्रोलॉजी में कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है, इज व्हाट सर इज आप इसमें एम्फसाइज कर रहे हैं। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, 3-4 साल की पढ़ाई, 2-3 साल की इंटर्नशिप अप्रेंटिस है, तब आपको आएगी ज्योतिष। वंडरफुल। मेरा बार बार ध्यान आपके अटायर पे भी जा रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में ये रहता है कि अगर एस्ट्रोलॉजर है तो वो कुर्ता पजामा पहन के रहेंगे, लंबा सा तिलक लगाया होगा, बहुत सारा पूरा हाथ भरे होंगे उनके, मतलब हमारे एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर कोई ऐसा है तो वो एस्ट्रोलॉजर है। एंड ऑफ कोर्स जो ऐसे बात करते हैं कि शनि इस घर में बैठे हैं, इस टाइप से वो अपने नॉलेज को दिखाते हैं, उस टाइप के ही एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आपको देख के इट्स गिविंग अ कूल वाइब, इट्स लाइक आज के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं मेरे सामने, एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट व्यू। सो टेल मी अबाउट इट, आपके जब आपके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, या इफ वी आर गाइडिंग समवन दे कम टू यू, सो डू यू फेस दिस एज वेल कि दे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन कि ओ अच्छा ये एस्ट्रोलॉजर? I have had a couple of very cute experiences. I'll tell you one about that. Uh, Let me take the previous question first. जब मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू करा बचपन में, तब दादाजी, पिताजी, बुजुर्गों ने एक चीज समझाई थी. They told me that you should not have to wear a mask to be an astrologer. Howsoever you are in your life, naturally, you should be absolutely in the same Veshabhusha while being an astrologer. If you have to wear a mask to be an astrologer, you are not a simple man. A good astrologer is a simple man. A simple man is a man who doesn't wear multiple masks. सरलता होनी चाहिए. तो अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी अदरवाइज सोशल लाइफ में, आई वेयर casuals and semi formals mostly. I wear same while I'm at my practice, while I'm in my chamber. Then the Rudraksh Mala, which I wear, I've been wearing it since last 16-17 years. I did my entire graduation studies and then corporate life and then life as consultant astrologer while wearing the mala. This was my grandfather's mala. He wore it after his Svargarohan. पूजा घर में पड़ी थी, दादाजी को ही उनकी गुरु आनंदमयी माँ ने दी थी. मैंने पहनी हुई है बिकॉज आई लाइक इट, आई फील अटैच्ड टू इट, एंड माय बुक्स आर द वे आई एम. तो तो ये कितनी पुरानी है ये? हाउ की तो नहीं पता, हाउ हाउ यू नो सेक्रेड इज इट? ये पूछ वेरी सीक्रेट. हाउ मेनी इयर्स बैक डिड यू गेट? 1950-60s में दादाजी को गुरु माँ ने दी थी. अब गुरु माँ के पास कब से थी वो तो नहीं पता को. सो बहुत टाइम, एटलीस्ट 100 इयर्स तो कर सकते हैं. वाओ. आनंदमयी माँ गुरु माँ ने इंदिरा गांधी जी को भी एक रुद्राक्ष की माला दी थी, वो इंदिरा गांधी जी भी पहनती थी. ओके. अच्छा, जैसे इसके रुद्राक्ष हैं ये बहुत अलग लग रहे हैं, जो आज के रुद्राक्ष छोटे छोटे से होते हैं. एक्चुअली मैं वही नोटिस कर रही थी कि रुद्राक्ष भी बहुत डिफरेंट
लग रहा है। अब इसको हर जगह पहनते हो? Yeah, always. People must ask you as well a lot Yeah, like because unique है काफी। yeah, with my t-shirt, with my kurta, with my tuxedo, I always wear it no matter what I'm wearing with it. Okay. So इसको क्या होता है पहन के? Is there a difference that you feel like? I understand कि उन्होंने आपको as For me, it blessing is दिया। a spiritual belief. For me, it is a emotional belief. But something which I've observed, हम देखते हैं अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में ना, God's grace, I don't know the reason for it. This mala may be one of the reasons. I've had a very good healthy life. I don't fall sick. That's good. Immunity अच्छी है. मुझे कॉमन कोल्ड बुखार होता है, दवाइयाँ खाते रहते हैं. कई साल हो गए, दशक बीत गए, मैं बीमार नहीं होता. Not fallen sick in decades now. एंड आप कभी बीमार हो भी ना, ये हमारी ब्लेसिंग एंड प्रेयर है भगवान से। अच्छा, जैसे मैंने ये मेरे को भी नोटिस हुआ, मैंने बोला टच वुड, ये मैंने कहीं से सुना था तो मैं बोलने लग गई। तो ये भी कुछ सुपरस्टिशियस है क्या? अरे तो ज्योतिष में तो सुना नहीं, पर आदत है टचवुड मैं भी कई बार बोल देता हूँ. क्यों बोलते हैं? सी आई एम अ कर्मवादी, पर इनवेरिएबली किस्मत को, अरे यार किस्मत खराब है आज बारिश हो गई, वो लग गया है हमारे जबान पे, हमारी आदतों पे. एक तरह से मसल मेमोरी बन गई है कुछ सुपरस्टिशन तो हम लोगों की. बिल्कुल। अब इंडिया में मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस है और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एंड जनरली जब मेंटल हेल्थ का केस होते हैं या फिर इफ समवन इज फीलिंग मेंटली नॉट ओके, दे गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। तो डज एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स विद मेंटल हेल्थ? Many people who visit us for consultation, जी। they express their unhappiness कि हम उदास रहते हैं, हमें चिंता होती है, हमें बेचैनी होती है. In my understanding, this is mental health only. And onset of such a phase कि इससे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक हुआ था, इस पीरियड से इस पीरियड आपको एंजाइटी हुई होगी, यहाँ से आपने उदासीनता या सॉरोनेस सैडनेस एक्सपीरियंस करना शुरू हुई होगी, 2 महीने पहले इसमें एक स्पाइक आया होगा. वी कैन वेरी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, मैप इट आउट रादर, एंड देन प्रिडिक्ट फॉर फ्यूचर एज वेल. देन देर आर रेमीडियल एस्ट्रोलॉजीज कि आपकी इस उदासीनता को ठीक करने के लिए ये उपाय करें, ये 3 महीने में ठीक हो जाएगी. एंड इन माई प्रैक्टिस फॉर so many years, I've seen it working, happening every now and then, every case. Astrology, if researched properly, if practiced properly, can give significant, impact in betterment of individual mental health and societal mental health. कोई तो कारण रहा होगा, हमारे जो पूर्वज थे उनको बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होती थी, क्योंकि तब ज्योतिष भी अच्छी थी, जीवनचर्या भी अच्छी थी, खाना पीना भी अच्छा था, आहार विहार भी अच्छा था. अब ना तो ज्योतिष अच्छी रही, सर्विसेज अच्छी रही, एस्ट्रोलॉजर अच्छे रहे, उल्टी सीधी एडवाइजरी मिल रही है, उल्टे सीधे लोग राइट डिसीजन ले रहे हैं, फियर साइकोसिस, सुपरस्टिशन, आहार विहार भी हमारा खराब हो गया, लाइफ स्टाइल भी खराब हो गया. आउटकम हम मेंटल हेल्थ जो देखते हैं वो है. सर, जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, जब हम किसी के साथ बी इट साइकियाट्रिस्ट और एनीवन वी वांट अ हेल्प फ्रॉम, इवन एस्ट्रोलॉजर, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो प्रिवेसी डज मैटर। मैं नहीं चाहती कि मेरे जिससे मैं बात कर रही हूँ मे बी एन एस्ट्रोलॉजर, वो मेरी बातें बाकी क्लाइंट्स को या शोकेस करे या मेरा नाम भी ले। तो सर, मैंने देखा है कि कई बार बड़े बड़े लोगों के नाम लेके एस्ट्रोलॉजर्स अपने आप को पिच करते हैं। सो व्हाट इज दैट? लाइक प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या एस्ट्रोलॉजी में? So ridiculous practice which people are doing. Astrological consultation is highly privileged. यदि आप अपनी कुंडली मुझे दिखा रहे हैं तो ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे से बात कर रहे हैं. A good astrologer, a protocol wise upright astrologer will give you absolute privilege, absolute privacy. हम किसी को नहीं बताते हैं कि ये फलाना आदमी हमसे बात कर रहा है. आपकी कुंडली और लाइफ के बारे में बताना तो बहुत ही दूर की बात है. We as astrologers are not even allowed to tell anybody that this person took consultation from us. फिर जैसे अभी आपने पॉइंट आउट किया, देर आर एस्ट्रोलॉजर्स जस्ट पर तो आती है नहीं ज्योतिष पर, तो घटा टोट तो भयंकर अपना प्रस्तुत करने के लिए, अरे हमने तो इस सेलिब्रिटी की कुंडली में ये देखा है, हमने इसकी कुंडली में ये देखा है. अरे तो सेलिब्रिटीज आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स. डिड दे गिव यू राइट टू टॉक अबाउट देयर लाइफ? उस क्रिकेटर के साथ ऐसा होगा, अरे आपको परमिशन किसने दी उस क्रिकेटर की पर्सनल लाइफ पे बात करने की? ये तो मैं इनको ज्योतिष नहीं मानता, ये तो अंधविश्वास फैला रहे हैं और खुद भी अंधविश्वासी हैं और खुद भी मूर्ख हैं. ये क्या किसी को सलाह देंगे?
देन विश्व विजय पंचांग का हमने बहुत बार सिंस डेकेड्स कई एपिसोड्स हुए हैं जहाँ पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर तथाकथित अपने आप को ज्योतिष मानने वाला एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शंस उठाकर हमारी कॉपी कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है. नाम तो ऑलरेडी आपका है ही, कौन ही चुरा लेगा, और वे जो विश्वास करते हैं वो असली में ही करेंगे. Our job is not to become popular. जी. My job is to be accurate when I predict for someone. I'm true to my profession. My pursuance is to give accurate predictions to individuals and for society. बाकी का फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या बात कर रहे हैं. कल लोग क्या बात करते हैं, इससे मेरे को एक चीज़ याद आई. सर लोग ये भी बात करते हैं कि पिछले जन्म में तुमने ये किया होगा तो तुम इसलिए ये भुगत रहे हो, या इस जन्म में तुम ऐसे करोगे तुम गधे बनोगे अगले जन्म. तो उसका क्या मतलब है, लाइक ये सब कहाँ से बातें आ रही हैं? देखो सिमरन, ज्योतिष सीखते नहीं, ज्योतिषी बस दुकान खोल के बैठ जाते हैं, फिर कोई पॉइंट आ जाता है कि अरे मेरे साथ यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ, अरे ये तो हम तुम्हें समझा नहीं सकते जो पिछला जन्म है, बस टाल दिया हमारा पिछला जन्म कौन चेक करने गया था. प्लीज अंडरस्टैंड, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष, शास्त्र ज्योतिष, पराशरी जी. is mathematical tool to talk about very accurate predictions of your life from the instance of your birth to your death. जी. जिस क्षण आपका जन्म हुआ है वहां से आप जो जो कर्म करते गए उनकी वेरी एक्यूरेट मैपिंग अंटिल यू डाई. आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसको हम आपका पराब्ध कहते हैं. आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उस पराब्ध से इस जन्म में आपको अपनी माता जी का गर्भ मिला. Because of your previous karma, you got the parents you got in this life. That's it. उसका पिछले जन्मों के कर्मों का केवल एक इम्पैक्ट आता है, हम सबके ऊपर आता है. वो क्या होता है, अभी ये माँ मिली. अब इस जन्म में अपने जन्म के बाद हमने जो भी किया वो इसी जीवन की कहानी है. कई बार लोग बोल देते हैं कि अरे मेरे तो पिछले जन्म के कर्म खराब होंगे, मैं तो हुई अनलकी. अरे भाई, डू यू कंसिडर योर मदर टू बी अनलकी पार्ट ऑफ योर लाइफ? इफ यू आर प्राउड टू हैव योर मदर, डोंट कॉल पिछले जन्मों का पाप. आपके पिछले जन्मों के सब संस्कारों से आपको इस जन्म की माँ मिली है. ये तो पिछले जन्मों का क्या होता है, सब इसी जन्म का कर्म है, इसी जन्म में भोगना पड़ता है. इसी जन्म में हम जो करते हैं उसका हमें फल मिलता है. इस जन्म में हमें जन्म मिला इन माँ बाप से, इस परिवार में, यही हमारे पिछले जन्मों का प्रारब्ध था. इसके अतिरिक्त इस जन्म में हमारे साथ जो भी होगा वो केवल और केवल इसी जन्म में लिए गए निर्णय, डिसीजन इत्यादि इत्यादि हैं. इंटरेस्टिंग. मेरे दिमाग में एक बात और आई रिगार्डिंग दिस कि जैसे समटाइम्स बेबीज आर बोर्न एंड दे डाई, गॉड फॉरबिड, बट लोग ये बोलते हैं कि उनकी जो सोल है उनके लिए उतना ही टाइम लिखा गया था. सो मतलब मेरे को मान, बिकॉज इट इज़ वेरी अपसेटिंग देखिए कि द बेबी इज लाइक इट्स अ बेबी, उसका क्या गलती है? देखो सिमरन, Yeah. in astrology, one of the basic fundamentals which we are taught, apart from the mathematical model, is जी. that an astrologer needs to be emotionally zero. No place of emotions, no place of moral biases, no place of patriarchy, etc. biases. We have to be absolutely neutral and look into a horoscope only mathematically. Whosoever is born at the instant of the birth, कुंडली लग्न कुंडली is fixed. Thus the age also, जिसको शायद मॉडर्न साइंसेस में कहते हैं यू नो डेथ जीन की. एट द इंस्टेंस ऑफ अ बर्थ ओनली अ क्लॉक स्टार्ट्स कि ये लाइफ इतना चलेगी. कोई पलारिष्ट योग होगा वो बचपन में ही मार्केश देख लेंगे, कोई छोटी एज में कोई दीर्घायु तक जाएंगे. सच इज लाइफ. इसमें ना तो कोई शुभ है ना अशुभ है. दिस इज मदर नेचर, ये मूल प्रकृति है. हमें जो जन्म मिलता है वो हमारे प्रीवियस जन्मों के हिसाब से मिलता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सिमरन, इफ यू अलाउ मी. Yes, please. लेट्स से आप एक वीडियो गेम खेलने जा रही हैं. बचपन में होता था ना, वीडियो गेम पार्लर होते थे, मारियो कॉन्ट्रा वगैरह हम खेलने के लिए जाते थे. लेट्स से सिमरन एक वीडियो गेम पार्लर जाती है. सिमरन विजिट्स अ वीडियो गेम पार्लर. शी पेज 50 rupees टू द वीडियो game parlor person and she gets 1 hour of playing session. You play for an hour and you perform really well. You reach level 3, level 4. Immediately after 1 hour, the game console is turned off. You have to get up and leave. You get up, you think, yeah, some mama must be waiting for me. I should go back home. While you are exiting the game parlor, you find a bouncer. Bouncer says, "Ki buddy, you can't leave.
because you came with 50 rupees, you gave us 50 rupees, and you performed really well. You have 40 more credits. The rule of the parlor is that you exit only when your ledger is 0, 0. So you can't leave. You cry, crave. Sorry, nothing doing. You have to play again. Ledger should be 0, 0. You again start a session. Now you are under anxiety. I have to be, balance my ledger. Otherwise, I won't be able to go home to mama's lap. You perform under anxiety, and now you are 3 levels down. You turn off your gaming console, you are leaving, bouncer again stops you. Nobody, 0, 0. You again take a session in pursuance to get 0, 0. ये सेशन हमारी जन्म में हम लेते रहते हैं, आते जाते रहते हैं उस कर्म अपने लेजर को बैलेंस करने के लिए। ओके, तो हमारे कितने जन्म होते हैं? हमारे उतने जन्म होते हैं जितनी आप गिनती कर सकें, जितनी आप कल्पना कर सकें। वैदिक सनातन तो ये कहता है कि हम ट्रैवलर हैं, हम सभी ट्रैवलर हैं, आप मैं और हम आते जाते रहते हैं। आजकल आप देखेंगे तो कुछ सालों से मोक्ष को बड़ा लोगों ने हाँ जी, बिल्कुल। वो कर दिया है, मोक्ष मिलेगा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो प्राचीन हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने बड़ी घोर तपस्या करी, ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर ने इनसे वर मांगा। हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, किसी ने मोक्ष नहीं मांगा। मोक्ष क्यों लेना है? जीवन में हर बार जब आप जन्म लेंगे तब आपको माँ मिलेगी। जब आप जन्म लेंगे तो माँ मिलेगी। माँ ही तो आनंद है, माँ ही तो खुशी है। अगर आप जन्म ही नहीं लेंगे, मोक्ष नहीं लेंगे तो अब माँ नहीं मिल पाएगी। वो आप अद्वैत में चले गए, द्वैत में ही आनंद है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने तो कभी कहा ही नहीं कि मोक्ष लेना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि जीवन के 4 चरण होते हैं, फेजेस होते हैं, जिसमें से मोक्ष अंतिम चरण है। जब हम बुढ़ापे में जाते हैं, बॉडी एज होने लगती है, हम कंज्यूमरिज्म से पीछे हटते हैं, अपने आप बुढ़ापा डिटैचमेंट ट्रिगर करता है, एंड देन डिमाइज, वी लीव द बॉडी। मोक्ष तो जब मृत्यु होती है तो हर व्यक्ति को मिल ही जाता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करना पड़ता। आप अपने कर्मों पे फिर फोकस कर रहे हैं ताकि ये जीवन का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, और फिर बार बार जन्म लेते रहे। हर बार जन्म लोगी, माँ मिलेगी। दैट मेक्स सेंस एक्चुअली। सो अगर मैं आज की बात करूं, ये तो हमारे पास्ट की और सोल की बात हो गई। नाउ इफ आई थिंक अबाउट द प्रेडिक्शंस, ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ पे सबको लगता है कि हाँ अब बात आई है। सब प्रेडिक्शंस आपने किए हैं इन द पास्ट, आर देयर सम प्रेडिक्शन दैट यू हैव ऑलरेडी डन फॉर द फ्यूचर जो हम Yeah. सब जान सकते हैं? We generally to see prediction is prediction if it is done in advance. या ऑब्वियसली। Like for instance, when the unfortunate attack on our forces happened in 2016, it was carried in Vishwa Vijay Panchang, and during this month particularly, there is a significant threat of terror attacks onto our security forces. Further, in the same edition of Panchang, which was printed a year ago, it was said that if this unfortunate incident happens, then भारतीय सेनाएं सीमा उल्लंघन करके शत्रु का नाश करेगी। वो हुई हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स। जैसे प्रेडिक्ट किया था सीमा उल्लंघन करके। उसके कुछ सालों बाद एक और प्रेडिक्शन थी कि इस वर्ष भी उत्तर दिशा में किसी सैनिक प्रतिष्ठान पर आतंकी साया मंडरा रहा है। 2019 के शुरुआत में भारतीय वायुसेना शत्रुओं का नाश करने के लिए मोर्चा संभालेगी। दिस वाज प्रेडिक्टेड इन 2018 edition, and then we actually saw the air strikes as well for 2020 March. 2018 में हमने प्रेडिक्ट किया था that in 2020 Saturn will start its own transit in its own sign, which will change the global order once and for all. There will be significant sense of fear for warfare and diseases from March 2020, and afterwards global markets will melt down and world will change forever. इसका नरेशन हमने होते हुए देखा with pandemic. द कोरोना वायरस। जी, then in 2020-21 we predicted that I'm quoting कि रूसी शेर विश्व पटल पर अब दहाड़ करेगा। Then in 2021 we predicted कि रूसी सैन्य गर्जना 22 फरवरी 2022 तक नहीं होगी। रूसी इज रशिया। रशिया। रूसी सैन्य गर्जना 22 फरवरी 2022 तक नहीं होगी। If you remember that time, there was this significant war fog. President Biden was predicting that we have intel inputs that Russia will invade on 10th January, 15th January, this and that. That time we made a prediction that Russia will not invade until 22nd February 2022. अगले दिन रूसी सेनाओं ने अस्त्र गर्जना कर दी थी। वहाँ
In our astrological opinion, 2020 to 2028 is the Third World War. We are already in it. It started with the pandemic. First kinetic aggression happened with the Ukraine war, Russia-Ukraine war. Second major kinetic aggression happened when Israel took on terror outfits of Hamas, Hezbollah, Houthi and terror regime in Iran. इसराइल के लिए विश्व विजय पंचांग ने स्पष्ट लिखा था कि इस महीने में एक बड़ा आतंकी घटनाक्रम इसराइल में हो सकता है. इसराइल शत्रुओं का नाश करने के लिए इस माह में अस्त्र गर्जना करेगा. इसराइल गोज फॉर वॉर. लास्ट ईयर हमने प्रेडिक्ट किया था कि ईरान और इसराइल के मामले गर्म हो जाएंगे. ईरान कुछ गलतियां करेगा जिसके कारण अब वो एक बहुत लंबे समय तक आने वाले अंधकार में चला जाएगा. वो गलतियां ईरान ने फिर से कर दी और अब 2025-26 में ईरान इज हेडेड टूवर्ड्स लॉन्ग नाइट्स ऑफ डार्कनेस, स्टेट chaos, total state collapse. Tehran will fall. And then many years later, a new democratic setup will again emerge in Iran. Iran is headed in the same direction in which Iraq and Afghanistan was headed. और अमेरिकन डिक्लाइन का प्रिडिक्शन बहुत देखा होगा, ब्रिक्स का देखा होगा, ब्रिक नेशन, ब्रिक करेंसी एंड ऑल. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. 3 साल पहले विश्व विजय पंचांग क्लियरली प्रेडिक्टेड दैट डीमोनेटाइजेशन एंड ब्रिक्स करेंसी इज अ बीरबल की खिचड़ी, ये कभी नहीं पकेगी. जी. Then America appears to be going stronger and also appears to be going for war. United States of America is likely to go for war. We see significant collision of American and Chinese interests. Russia and America will very soon become allies now. They will not just normalize their relation. Russia and America become allies now. India would remain a military strategic ally to Russia and America as well. Britain, France and Israel will also join American bloc along with India. America, Britain, France, India, Israel will become the new military global order which will start emerging this year itself. Russia will remain a second superpower bloc which will have very friendly ties with this American, Indian, Israeli bloc, and both these blocs will take the dragon head on. And in this sequence, CCP implodes and China collapses. Okay, this is a huge prediction. So, people must be really into this stuff at the moment. जो predictions होते हैं बहुत लोग करते हैं. अब हमारे को कैसे पता as a user कि ये prediction accurate है, in the sense of course जब time आएगा तो पता तो लग ही जाएगी, but किसकी बात सुने, वो चीज़ आती है. आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, let's say if you visit an astrologer, of course don't expect astrology to be a free service. You should honor the service piece of the astrologer. अगर आप मकान बना रहे हैं, एक आर्किटेक्चर को हायर करते हैं तो उसको भी सर्विस पीस देते हैं. शादी कर रहे हैं, बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं, लाखों दे देते हैं वहाँ पर. When you visit a astrologer, you should honor the astrologer with the service piece. Astrologer charges service fees for application of his mind and investment of his time. Just give your birth details to astrologer, no question, nothing about yourself. If astrologer is able to map 3-4 incidences of years gone by, let's say if you're 25-year-old, astrologer should be able to at least predict 2-3 incidences with accuracy about these many 24 years of your life. If astrologer is able to do that, then only take his advisory or prediction seriously, otherwise ये तो सर वो गया कि पर्सनल लाइफ में, जैसे अब इवन फॉर लाइक मीडिया में भी बहुत सारे डिबेट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को बिठा देते हैं और वो आपस में प्रेडिक्शन करके बताते हैं. एक बंदा कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है. बात क्या वहीं आके रुकती है कि ये सही है, मतलब एक्चुअल ट्रू एस्ट्रोलॉजर है क्या नहीं है. वहाँ पे प्रेडिक्शंस भी मैटर कर जाते हैं. एब्सोल्युटली. और ज्योतिष तो प्रत्यक्ष है. यदि आपकी भविष्यवाणियाँ सत्य हो रही हैं तो दिखेगी. आजकल लोग कहने लग गए ये एस्ट्रोलॉजर 70% एक्यूरेसी, इसकी स्ट्राइक रेट 80% है. ये कैसे हो भाई? अरे एस्ट्रोलॉजर है, क्रिकेटर थोड़ी है कि आप स्ट्राइक रेट कैलकुलेट कर रहे हो. एस्ट्रोलॉजी is science, it is mathematics. A good astrologer is one जो 100% accurate हो हर बार. Astrologer should be able to make every predictions perfectly. It is maths. ऐसा नहीं हो सकता 70% ठीक है 30% गलत है. नहीं, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए. 1% 2% मैनुअल एरर के लिए छोड़ दो कि कुंडी गलत बना दी, कैलकुलेट गलत कर दिया. मैनुअल एरर हो सकता है. एस्ट्रोलॉजर इंसान ही होता है, मैनुअल एरर हो सकता है. 99-98% एक्यूरेसी नहीं है तो वो ज्योतिष ही नहीं है. As I said before also, problem with India or rather everywhere globe is
ज्योतिषियों को 90-95% एस्ट्रोलॉजर्स को लगता है कि वो ज्योतिष है, वो ज्योतिष है नहीं। उन्हें बस लगता है, वो मानते हैं कि वो ज्योतिष है, वो खुद ही डिल्यूजन में है। इंटरेस्टिंग। सर, मेरे को चक्रास के बारे में बहुत फैसिनेशन है कि चक्रास जो होता है, 7 चक्रास जिसको बोलते हैं ना, इसकी अवेयरनेस भी बहुत बढ़ रही है इंडिया में भी एंड वर्ल्ड वाइड में भी। तो उसका क्या टेक है आपका कि चक्रास क्या होते हैं और उसको बैलेंस होगा तो क्या होगा? उसका अवेयरनेस थोड़ा बताइए। Simran, this question of yours is a very interesting question, but it is not just a question. ये अपने आप में एक field of study है. This question is more or less related to Tantra and Adhyatma. I don't speak on Tantra and Adhyatma much. I'm not even knowledgeable person. I have a very little understanding of what Tantra is and what Adhyatma is, which I learned in my family in my growing up years. I'll share whatever little I know about it. See, and there is a lot of confusion in the same spectrum. जैसे एस्ट्रोलॉजी में लोग कुछ भी बोल रहे हैं आजकल, तंत्र और स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं. वही स्टीरियोटाइप ही एक्सपेक्ट अ पर्सन हु इज इनटू स्पिरिचुअलिटी और तंत्र एज अ पर्टिकुलर प्रोफाइल परसोना की, ऐसे बड़े बड़े बाल होंगे, ये होगा वो होगा. ये पता नहीं कहाँ से ये मिसकंसेप्शंस हमारे आ गए हैं. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट द प्राइमरी क्वेश्चन, व्हाट आर वी. हम कौन है, मैं कौन, सिमरन कौन है. सिमरन हैज अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी. सिमरन इज दिस बॉडी. सिमरन इज ऑल्सो द लेगेसी विच शी कंटिन्यूज ऑफ मारवास. Simran is also the sentient individual, the emotional individual. You have an emotional identity, you have a social identity, you have an ancestry identity, and you have a bodily identity, that this biological body is also Simran, right? So our biological identity, the biological body, is called Annamaya Kosh. Annamaya Kosh. Annamaya Kosh, because to run this body, we need to eat and we need calories for it. Our physical body is called Annamaya Kosh. Then the biochemistry, the calorification cycle, the energy, cycles of this biological body, जो हमारी एक एनर्जी भी क्रिएट होती है. मैं बायोलॉजिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ. पैरानॉर्मल एनर्जी, द बायोलॉजिकल एनर्जी, द कैलोरिफिकेशन साइकिल, जी। उसे कहा गया प्राणमय कोश. जिसे ओरिएंटल वर्ल्ड में ची और अवग्रह कहा, प्राणमय कोश. आपने कभी ध्यान दिया हो तो हम कहते हैं प्राण चले गए. जब मृत्यु होती है किसी की, हम कहते हैं प्राण चले गए, विच मीन्स द बायोलॉजिकल बॉडी अन्नमय कोश डज नॉट हैव एबिलिटी टू सस्टेन द प्राणमय कोश एनी वे. सो प्राणमय कोश अब चले गए, वो मृत्यु हम उसे कहते हैं. सिमिलरली प्राणमय कोश के ऊपर एक और लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है हमारा, जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं. वो हुआ आपके मन की परिस्थिति, द स्टेट ऑफ योर माइंड, जो हमेशा डायनेमिक रहेगा. आपका मन, योर माइंड, वो आपकी थर्ड एग्जिस्टेंस हुई, मनोमय कोश. इसके सॉरी टू इंटरप्ट। मन या दिमाग? मनोमय कोश. मनोमय कोश। Mind. Mind has many faculties, including our brain, rationality, intelligence, etc., emotions, etc. फिर मनोमय कोश के ऊपर हमारी एक और फैकल्टी होती है जिसको हम कहते हैं ज्ञानमय कोश, द नॉलेज reservoir, the ancestral knowledge which we carry by virtue of maybe our genetics, our DNA. आपके जितनी भी दादा दादी नाना नानी रही हैं, सबके संस्कार आपके अंदर है. आपने सुना होगा, कहते हैं ना, आपके पूर्वजों के संस्कार आप में है, पूर्वजों का जेनेटिक्स आप में है. जो हमारी मसल मेमोरी होती है, एवोल्यूशनरी मेमोरी होती है, एवोल्यूशनरी रिएक्शंस होती हैं, वो सब जिस फैकल्टी में स्टोर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं ज्ञानमय कोश. उसके ऊपर जो कोश है वो आनंदमय कोश. वहाँ पे अद्वैत है, वो आनंद है. द्वैत है, आनंद है. अद्वैत नहीं, वो द्वैत आनंद है. अब इसमें कुछ एनर्जी साइकिल्स हैं जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने आइडेंटिफाई करे. ये फिजिकली बॉडी में नहीं दिखेंगे. जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं कुंडलिनी अवेक करा देंगे, आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे. अरे इन द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन, जब हम बाइपेडल हुए तो माँ कुंडलिनी जागृत हो गई थी. हमारा बाइपेडल होना ही कुंडली का जागृत होना था. अब इसमें कुछ चक्र होते हैं, एनर्जी चक्र हैं, जिनमें हमारे मन या ज्ञान या प्राणमय कोश या अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, प्राण एनर्जी, स्टेट ऑफ माइंड और द एंसेस्ट्री नॉलेज, और जिसको हम पितृदोष कहते हैं, उसके कारण से हमारा ये पूरा इन पांचों कोशों का जो इक्विलिब्रियम है, सिस्टम है, ये बिगड़ने लग जाता है. इसमें डिस्टॉर्शन आती है, जैसे गाड़ी खराब हो जाती है ना,
देन स्पिरिचुअल तांत्रिक साधनाओं से हम उन्हें बैलेंस करते हैं। मूलाधार चक्र बेस में होता है, ऐसे ऐसे करके हमारे चक्र आते हैं, यहाँ आज्ञा चक्र है, फिर एक वो सहस्त्रार चक्र है। इन सब चक्रों का क्या महत्व है, ये क्या होते हैं, इनमें कैसे दोष आते हैं, उन दोषों का उपाय या उपचार कैसे होता है, ये बहुत बड़ा तांत्रिक स्पिरिचुअल अपने आप में स्कूल है। इसके ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं बड़े बड़े। आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है, वो यूट्यूब पे सेशन हो रहा होता है, जूम कॉल पे, हमने आपका चक्र ठीक कर दिया, हमने आपको हीलिंग भेज दी। पता नहीं क्या हो रहा है ये। हर तंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, स्पिरिचुअलिटी अपने आप में वो तो दर्शन है, उससे बड़ा तो है ही क्या। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो जैसे आजकल चलता है यूट्यूब पे कि हम आपके चक्र ठीक कर देंगे ये सब, जैसे आपने मेंशन किया। तो यस, समटाइम इफ यू प्रैक्टिस दोज, आपको इफेक्ट लगता है कि ये शायद वो चीज़ हो चुकी है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उन्होंने डिलीवर किया। तो इज़ इट लाइक अ माइंड प्ले ओनली? यस, आपको अगर कोई तांत्रिक दीक्षा दे सकें, आध्यात्मिक दीक्षा दे सकें, या आपके चक्रों को शक्तिपात से ठीक कर सकें, वो केवल और केवल आपके इंडिविजुअल लाइफ में गुरु होंगे आपके। और वो जो गुरु हैं, वो तो गुरु हैं, वो अपने आप आते हैं, वो अपने आप आएंगे, आप उनकी सर्विस नहीं अवेल कर सकते। और केवल आपके अपने जो गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु हैं, आपकी माँ आपकी सबसे बड़ी गुरु होती है। आमतौर पे देखने को मिलता है, क्वेश्चन आता है हमारे पास कि पंडित जी देख के बताएं हमें गुरु कब मिलेगा, हमारा तो कोई गुरु ही नहीं। अरे, इफ यू हैव अ मदर, योर मदर इज योर गुरु। सबसे गुरु कौन है? जो ज्ञान दे। आपकी माँ ने आपको सबसे पहले सिखाया, जीवन जीना सिखाया, खाना खाना सिखाया, बोलना सिखाया। सबसे पहली गुरु तो हम सबकी हमारी माँ है, फिर पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, स्कूल में आपको जिन्होंने पढ़ाया वो सब आपके गुरु बनते गए। आध्यात्मिक गुरु कौन है? जिन्होंने आपको अध्यात्म दर्शन या तंत्र की दीक्षा दी। मान लीजिए बचपन में आपकी नानी ने आपको बोला बेटा हनुमान चालीसा पढ़, या बेटा जपजी साहिब का पाठ कर। उन्होंने आपको दीक्षा दे दी और वो आपके गुरु बन गए। ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है। और मान लीजिए कोई ऐसा हो जिसकी माँ ना हो, जिसका जन्म के समय ही वो माँ से बिछड़ गया हो। भगवान शंकर ने कलयुग में हर जीव को षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी है। तो भगवान शंकर तो हम सभी के गुरु हैं, जिन्होंने ओम नमः शिवाय की दीक्षा भी सबको दे दी। माँ गुरु होती हैं, पिता गुरु होते हैं, दादा दादी गुरु होते हैं। गुरु तो हम सबके जीवन में होते हैं। दोज पीपल आर डिल्यूजनल जो कहते हैं हमारा कोई गुरु नहीं। जी। तो जैसे आपने मेंशन किया कि ये यूट्यूब और इन सब पे जो वीडियोज़ चलते हैं दैट इज़ नॉट दैट रेलेवेंट टू द चक्रास। वो नहीं कर पाते हैं जो कि एक्चुअल गुरु आपकी लाइफ में चक्रास को बैलेंस कर पाएगा। सो आई वांट टू आस्क कि पहली बात हमें पता कैसे चलता है कि हमारे चक्रास नॉट बैलेंस्ड है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिजीजेस, मतलब चक्र खराब है। सिंपल। इफ यू आर हैप्पी एट कंटेंट, चक्र ठीक है। सिंपल। ओके। सो बेसिकली डज़ ह्यूमन बिहेवियर एंड जो हमारी सिचुएशंस होती हैं, क्या वो चक्रास पे इम्पैक्ट करती हैं? Absolutely, our actions, our decisions decide our emotional state. Our behavior formulates our sentient state. जी। और यही मनोमय कोश जो मैं डिस्कस कर रहा था, हम अपने इमोशंस को, डिसीजंस को, सेंटिमेंट्स को मनोमय कोश में देखेंगे। मनोमय कोश में अगर कोई विकार आ गया, तो वो एक समय में 2-3 महीने बाद, इसको हम ज्योतिष में कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि मनोमय कोश में यहाँ विकार आया, कुछ महीने बाद ये ट्रिकल डाउन होकर प्राणमय कोश में आ जाएगा। प्राणमय कोश में जैसे ही आया, कुछ दिनों में या कभी-कभी घंटों में ये अन्नमय कोश बॉडी में चले जाएगा, जहाँ पे हमें ये डिजीज की तरह दिखता है। ऐसे कोई विकार सीधे ज्ञानमय कोश से आ रहा हो सकता है, उसे हम पितृदोष कह देते हैं। अगर मनोमय कोश को हील कर दें, या ज्ञानमय कोश से जो विकार आ रहा है जो ज्ञानमय कोश में आएगा फिर मनोमय कोश में आएगा, उसको हम मनोमय कोश में ब्लॉक कर दें या उसको हील कर दें, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज, सब कुछ ठीक हो जाता है। ओके। तो इवन जेमस्टोन्स और ये सब भी इसमें हेल्प करते हैं? Yes, yes. In a way, part of this theory only. See, prediction is very easy. Somebody with 5-6 years of studies of astrology should be able to जी। predict with 100% accuracy. Prediction करना तो ज्योतिष में हम कहते हैं, जो इंटर्न्स होते हैं उनका खेल है। हमारे इंटर्न्स भी 100% आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन करके दे देंगे। अभी सब कुछ आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि फ्यूचर में इफ टुडे यू डू दिस देन दिस विल हैपन, इफ टुमारो यू डू दिस विल हैपन। Day after you'll be only presented with 4 options, and circumstances will be like this. If you do this, then bad happens. If you do this, then very bad happens. If you do this, then very, very bad happens. जी। If you do this, then things are good, but circumstantially, this will be difficult to execute. Right? Such a situation will arise in every life. Here we have Upay Jyotish, Samadhan Jyotish, remedial astrology.
Remedial astrology is like game theory. मैथ्स का एक गेम थ्योरी कॉन्सेप्ट होता है. Predictions astrology is bringing determinism in chaotic systems. Now remedial astrology is game theory. एक seasoned astrologer prediction तो कोई इंटर्न भी कर देगा, ये होने वाला है या ऐसा ऐसा हो जाएगा, इसे टाले कैसे. वो remedial astrology होता है where a seasoned astrologer will identify patterns correctly, isolate them correctly, find out all the pit stops of the butterfly sequence, and then calibrately change one pit stop. Okay, in this sequence, if we change this pit stop, then in the butterfly sequence, a significant macroscopic impact will be induced in the individual's life. इसे समाधान ज्योतिष या उपाय ज्योतिष कहते हैं. दिस इज, जैसे वो होता है ना कि एमबीबीएस करने के बाद आप डॉक्टर बनते हो, फिर एमडी वगैरह कुछ और पढ़ाई करते हो, फिर सर्जन बनते हो. एस्ट्रोलॉजर विद 7, 8, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस वो आपको रेमेडी बता पाएंगे. बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ्स होती है, पर प्योरली मैथ्स होती है. तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो, आप डॉक्टर स्ट्रेंज हो एस्ट्रोलॉजी के. डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं, स्ट्रेंज काफी हूँ. Dr. Strain, what he used to do, he used to see the scenarios and he would choose a scenario which make the best outcome for that particular day. मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं, पर स्ट्रेंज बहुत हूँ. जी. सो सर, जैसे हम बात करते हैं सब क्रिस्टल्स की, दुकानों पे जो मिलते हैं, तो हम अपने आप, जैसे कोई बोलता है कि ये क्रिस्टल पहन लो, मेरे राशि के हिसाब से ये सही है, तो वो मेरे को पहन लेना चाहिए क्या? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. Yeah. आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, आपने उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, यू हैव जस्ट गिवन योर बर्थ डिटेल्स टू द एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर इज एबल टू मैप आउट योर लाइफ की last 10, 15 years, this has happened very accurately. And then the astrologer predicts for you, Okay. understands your problem, understands your current situation, is able to tell you your current situation. Then the astrologer will specifically advise you certain gemstones. केवल वो gemstones पहने. Otherwise, for fashion, for accessories, casually, never wear a gemstone. Every gemstone will have an impact. If it is not very carefully selected, it will have a negative impact onto you. That- Gemstones are very important. People should not go casual on gemstones at all, including diamond, including pearl, including sapphires, including ruby. Go very slow and be very cautious while you are wearing a gemstone, even if it is for recreation or even if it is for fashion. वो होता है ना कि अगर मैं कोई दवाई खा लूँ मजे मजे में, तो भी तो असर होगा ही. बिल्कुल. वो इंटेंशन के ऊपर थोड़ी है. जी. इसमें प्लेसिबो का भी कोई रोल नहीं होता. आई हैव सीन सो मेनी केसेस कि भाई आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, कोई बात नहीं है, जेमस्टोन पहन ले. आई डोंट बिलीव इन दिस जेमस्टोन आल्सो, इट विल स्टिल वर्क. नहीं, किसी ने मुझे कहा था इफ यू डोंट बिलीव इन द जेमस्टोन इट वोंट वर्क. भाई साइकोलॉजी थोड़ी है, साइंस है ये. Doesn't matter whether you believe in astrology, whether you don't believe in astrology, whether you believe in gemstones, whether you don't believe in gemstones. Put on a gemstone and it will impact you. सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को दिमाग में आया है. सर, जैसे कई बार एस्ट्रोलॉजी में आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि समवन कम्स टू यू एंड दे से कि उसके साथ ऐसा कर दो, उसने मेरा बिगाड़ा है, तो आप उनका कुछ करके बिगाड़ दो कुछ? Corrupt practices. I don't prescribe to it. Nobody in my family has ever prescribed into it. ये पाप है ऐसा करना. और ऐसा कोई कर भी नहीं पाता. ये ज्योतिष में तो कोई ऐसा कर नहीं सकता है. ज्योतिष is your story, your life story. How can me predicting or giving you remedies about your life implicate somebody living in Uganda? It cannot. तंत्र प्रैक्टिसेस में और बहुत छोटे गंदे लेवल की तंत्र प्रैक्टिसेस में गंदे मॉरल कैरेक्टर प्रोफेशनलिज्म के कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, इसको हम प्रत्याचार कहते हैं. हाईली कंडेमेनेबल और बहुत गंदे काम है, नहीं करनी चाहिए. ठीक है. तो व्हेन इट कम्स टू, सो बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है एक इंडिविजुअल से रिलेट करती है, इट विल नॉट लाइक इम्पैक्ट द अदर पर्सन's लाइफ, करेक्ट? Yes, I'll give you an example to make it more clear. Let's Please. say, Simran, your horoscope will tell everything about you precisely. Let's say your father achieves a milestone in his life. Let's say he's awarded by government for something, right? You'll feel the relevant emotion. You'll feel the pride. You'll feel the happiness. That pride and that happiness will be seen in your chart, can be picked out from your chart, जी. not the exact event. In contrary, let's say some elder in your family, very old and going through health issue, you'll feel the corresponding misery and sadness. We can see that sadness in your chart. Yeah. But we can't locate what has happened with the individual.
Activity would be that individual's chart. That health development would be seen in that elder's chart. That award will be seen in your father's chart. उसका जो impact आपके जीवन में पड़ेगा वो आपकी कुंडली में रिफ्लेक्शन मिलेगा. ओके, दैट मेक्स सेंस। सर, अब कुछ ऐसी चीज आप बता सकते हैं कि कमिंग बैक टू द चैप्टर टॉपिक, कि हम प्रैक्टिस करें उस चीज को और हमारा चक्रास बैलेंस हो, ऐसा भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं बहुत सारी होती है, तंत्र साधना, उपासना, जप तप जो मंत्र. हम खुद कर सकते जी, हैं? जी, जी. हमेशा खुद ही करनी पड़ती है. कभी भी कोई आपके लिए नहीं कर सकता. कोई इजी वे नहीं है मतलब? देयर आर नो शॉर्टकट्स. और इजी ही है, वे बहुत इजी है, बस शॉर्टकट नहीं है. पर सिमरन, द लॉन्गेस्ट रूट कैन बी द सिंपलेस्ट ऑल्सो. You need not go for the shortest path. Simplest path is the long route, but it is the simplest path. योगा एंड मेडिटेशन इज योगा, मेडिटेशन, जप तप साधना करें, मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें, हाँ. डेली लाइफ में करें, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. रोज अपने आप मेडिटेट करें, योग करें, व्यायाम करें, मंत्र जाप करें, यू सॉर्टेड. दैट्स अमेजिंग। सो बहुत सारी नॉलेज आज हमने गेन करी, बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए। सर, एक आपसे आप डिस्कशन, रादर आप एक पॉइंटर्स देंगे कि देयर माइट बी सम मिथ इन एस्ट्रोलॉजी। टॉप 5 मिथ आपके हिसाब से क्या है? बहुत सारे हैं. मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, मटके से शादी करो, ऐसा करो, वैसा करो, गुड़ मिलान, गुड़ नहीं मिल रहे, शादी नहीं हो सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अनगिनत है. मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमें सुपरस्टिशन से बाहर आना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकली योर्स, एक लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंडिविजुअल बढ़े, समाज बढ़े. 2020 से 2028 तक की जो ये काल अवधि है, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी chaotic है. लॉट ऑफ chaos would be witnessed. अगर if we talk about particularly India, in context of subcontinent, in 2021 significant deviation towards unwanted trajectory started to happen. हमने एक ऐसा पाथ लिया जो unwanted पाथ था, undesirable था. जी। यहाँ बहुत खराब एक्सपीरियंस भी हमें आए सेकेंड वेव से. इसके बाद जनवरी 2022 में बहुत तीव्र गति से जीवन बदलने लगा. थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज वेरी रैपिडली इन जनवरी 2022. देन जून 2024 another major pit stop arrived. Things took a very surprising synchronous turn. June 2025 onwards, chaos will again see a spike. Chaos बढ़ जाएगा. आप अनिश्चितता अनुभव करेंगे, आप द्वंद्व अनुभव करेंगे. 2026-27 आते आते things will start calming down. Until then it is a little tricky period. यहाँ हमारी माँ भगवती से यही प्रार्थना है, भगवान महाकाल से यही प्रार्थना है कि जैसे भगवान महाकाल की स्तुति में हम कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उसी के अनुसार हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में, मेरे जीवन में सुगंध व्यापक हो, सुगंध हो, यही हमारी माँ से प्रार्थना है. थैंक यू सो मच सर। आपसे ट्रू एस्ट्रोलॉजी सीख के, समझ के, सीखा मतलब इनिशियल, बिकॉज टाइम लगता है सीखने में, एज सर सेड। इसके बारे में समझने में बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें क्लियर भी हुई, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं। एक नया पर्सपेक्टिव उनको मिला है कि हाँ, हम क्या आज तक जिनसे बात कर रहे थे वो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ट्रू एस्ट्रोलॉजर हैं कि नहीं। So, sir, thank you so much for your guidance, for your insightful views, and an amazing time. Thank you so much, sir.